Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. So friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 and that is Unit 2 Classical Method of Analysis. So friends, we have discussed in our last lecture about the theory of indicators and what different type of indicators you can use during your titration. Okay, so in every case it is not possible that you will always get an indicator or a chemical indicator as an indicator to show you the sharp color change. So in this case what you have to do, you have to take some other technique by which you can find out the end point of your reaction. Okay, so in our last lecture we have discussed that the end point of the titration can be also determined using chemical as an indicator. Then you can also use any instrument which can show you sharp response near your end point. Okay, so indicator will show color change and instrument will show sharp response near your end point. Okay, what is the meaning of sharp response? So if you are using potentiometer, it will show sharp change in potential. Okay, there will be increase in potential or it may be decrease also in some cases. Okay, so it will show sharp response. Okay, if you use the third technique, that is the conductometer, it will again show sharp change in conductance. Okay, so always it is not possible that you use chemical, but you can also use potentiometer and conductometer as your indicator, and instrument will show you change in the response. Okay, it will not show you any color change, but it will show you change in the instrumental response. So that can be the change in potential or change in conductance. Okay, so in our last lecture we have discussed our chemical indicator and we have started about the change in potential during your titration. Okay, so you can use the second method, that is using potentiometry as an indicator. Okay, so we have seen that during the potentiometric experiment what thing you required burette pipette, your conical flask, beaker, and very important part of this experiment will be potentiometer. Okay, so I will today introduce you what is the potentiometer. It is a simple instrument. Okay, and this instrument, if you give electrical connection, it will start showing you electrical response in the form of potential. Okay, so in whatever system you are attaching it, it will show you the potential of that particular system. Okay, so to find out the potential you require two electrodes. Okay, so potentiometer is always connected to two indicator electrode and reference electrode. These two electrodes are very important. Okay, so that also we have discussed that the indicator electrode is the one which will play the role to indicate the change in potential. Okay, so that electrode will show you the change in potential, and whenever you want to find out the change, one thing should be steady. So, okay, so that is your reference electrode. So potentiometer is attached with the two electrodes, one is indicator electrode and one is reference electrode. Okay, so see here very important diagram, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक ब्यूरेट है ना, और उस ब्यूरेट में हम लोग क्या भरेंगे, द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन. ओके, और नीचे क्या है देखो, यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है. सो इन कोनिकल फ्लास्क इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, सो यू हैव टू कैरी आउट इन अ बीकर. तो हम लोग बीकर में क्या लेंगे, एनालाइट सॉल्यूशन. ओके, सो यू कैन सी द एनालाइट सॉल्यूशन हियर. एनालाइट सॉल्यूशन मतलब क्या है, जिसका हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. सो द सिंपल थिंग विच यू टेक इन कोनिकल फ्लास्क, नाउ यू आर टेकिंग इन दिस बीकर. ओके, तो ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है दैट इज़ योर एनालाइट सॉल्यूशन. ओके, तो वो आप कहाँ पे ले रहे हो, इन अ बीकर. इसी बीकर में आप लोगों ने क्या अटैच करके रखा है, ब्यूरेट. ओके, सो ये ब्यूरेट जो है क्या करेगी, इट विल ऐड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज. आपको जो भी ब्यूरेट सॉल्यूशन ऐड करना है, आप 0.5 ml 0.5 ml या 0.2 ml आपको एवरी टाइम ऐड करना है. फिर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देर आर टू इलेक्ट्रोड्स केप्ट इन द सॉल्यूशन. हम लोगों को ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो इलेक्ट्रोड डीप करके रखने हैं. ओके, सो आउट ऑफ दैट द लेफ्ट हैंड वाला जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, सो वॉट एवर रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज देयर, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोड क्या है। इट इज़ अ मेटालिक और ग्लास पर्टिकुलर ट्यूब, उसके अंदर क्या रहता है, प्लेटिनम प्लेट रहता है। ओके, सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेमिस्टर कि इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं। बट फॉर दिस सेमिस्टर यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोड, एंड इलेक्ट्रोड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। फिर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। दिस वन राइट हैंड साइड वाला जो इंडिकेटर है और इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है इनके जो कनेक्शन है वो आपको किसको देने हैं, यू हैव टू गिव इट टू द पोटेंशियोमीटर। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड से वायर निकलेगी, ये वायर आप कहाँ पे अटैच करोगे, यू विल अटैच इट टू द पोटेंशियोमीटर। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड द particular experiment where you have to carry out the experiment where you are taking burette and pipette से हम लोग solution लेंगे और वो किस में डालेंगे, in a beaker, and then in that beaker हम लोग क्या डीप करेंगे, we will dip two electrodes, one is indicator electrode and one is रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमेशा फिक्स रहेगा, इट विल बी 0.242 वोल्ट। ओके, इट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट, तो वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। और वन चीज़ फिक्स है, वन थिंग इज़ फिक्स, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो आएगा पोटेंशियल में वो कौन कैलकुलेट करेगा, ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ योर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दैट विल फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है आप देख सकते हो, उसके जो वायर आने वाले हैं उसके कनेक्शन हम किसको देंगे, पोटेंशियोमीटर को। ओके, सो दिस पोटेंशियोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच विल शो यू द चेंज इन पोटेंशियल। तो अभी वो कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। सो सी, दिस इज़ द एक्चुअल पोटेंशियोमीटर। ओके, तो ये जो वायर आपको मैं दिखा रही हूँ और ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा, द राइट हैंड साइड डायग्राम। ओके, और आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट कैसे करना है। सो इन दैट पोटेंशियोमीटर, सी हियर, राइट हैंड साइड में एक ब्लैक कलर और रेड कलर का आपको वायर दिख रहा है, दैट वायर इज कनेक्टेड टू द योर इलेक्ट्रोड। ओके, सो यू कैन सी द इलेक्ट्रोड हियर, एक ग्रीन कलर का दिख रहा है और एक वाइट कलर का इलेक्ट्रोड दिख रहा है। सो वन इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड वन इज़ योर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ओके, वो जो वाइट वाला है दैट इज़ योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, दैट इज़ योर सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, उससे एक ब्लैक कलर का वायर निकल रहा है देखो, और एक ग्रीन कलर का है तो उससे रेड वायर निकल रहा है, और दोनों वायर हम लोग किसको अटैच कर रहे हैं, अपने पोटेंशियोमीटर को। तो ये जो बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में ही हम लोग ऊपर क्या अटैच करेंगे, वी विल अटैच द ब्यूरेट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम देखो, इन लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम यू कैन सी दैट अ ब्यूरेट इज अटैच टू द सेम बीकर। ओके, ये जो हमारी बीकर है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं, उसी में हम लोग क्या लगाएंगे, ब्यूरेट लगाएंगे। ओके, नीचे जो सॉल्यूशन है आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो बीकर है वो ये वाला बीकर है जिसमें हम लोगों ने एनालाइट सॉल्यूशन लेके रखा हुआ है। ओके, द इलेक्ट्रोड्स आर देयर, कैलोमल इलेक्ट्रोड दैट इज़ योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है दैट इज़ योर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, सेम वॉट एवर शोन इज़ योर राइट हैंड साइड डायग्राम। और वहाँ पे जो बीकर दिख रहा है यही है बीकर है, उसके ऊपर हम लोगों को ब्यूरेट अटैच करना है, एंड द टू terminals of the electrodes are given to the potentiometer. Okay, so this is the block diagram in the left hand side, and in the right hand side it is the actual diagram. Okay, so I hope now you understand the thing where you have to attach the burette and how you have to attach the electrodes. Okay, so now what experiment you have to carry out, just see here, every time what you have to do, अभी आपका जो बीकर का सॉल्यूशन है दैट इज़ सेम एवरी टाइम, एंड फ्रॉम दैट बीकर सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी आप लोगों को कोई कलर चेंज मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपको क्या मिलने वाला है, देयर विल बी चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ योर पोटेंशियोमीटर। ओके,
तो ये पोटेंशियोमीटर का देखो यहाँ पे ये रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा है, दैट इज़ द रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, देर आर डिजिटल मीटर विच कैन शो यू द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। तो ये बीकर में जो सॉल्यूशन है उसका पोटेंशियल कितना है ये हम लोग ये रेड बॉक्स में जो रीडिंग है उसमें देख सकते हैं। और ये रीडिंग क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये जो वायर है ना, ये वायर सॉल्यूशन में भी डीप है थ्रू द इलेक्ट्रोड और वो पोटेंशियोमीटर को भी अटैच्ड है ना। सो इस वजह से यहाँ पे आपका जो ये बीकर है इसमें जो सिस्टम चेंज होने वाली है पोटेंशियल, ये आपको रीडिंग कहाँ पे मिलेगा, पोटेंशियोमीटर पे मिलेगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू ऐड 0.2 ml ऑफ योर ब्यूरेट सॉल्यूशन। तो ये जो ब्यूरेट है उसका आप कॉक खोलोगे और उसमें से व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड 0.2 ml ऑफ योर सॉल्यूशन। 0.2 ml ऐड करो और उसको बंद कर दो, कॉक को बंद कर दो। देन स्लोली यू स्टर दिस बीकर, आपको इस बीकर को क्या करना है, स्टर करना है। ओके, देन व्हाट विल हैपन, व्हेन यू स्टर दिस बीकर आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। ये जो रीडिंग है बॉक्स के अंदर ये रीडिंग बढ़ेगा स्लोली। ओके, then again you will add 0.2 ml of your burette solution, you stir the beaker and again you will get slow increase in your reading। तो ऐसे आपको लगभग 20 से 25 रीडिंग लेने हैं। सो एवरी टाइम यू आर एडिंग 0.2 ml of the solution from your burette and slowly the reading will increase। Okay, so how you have to make a tabular form, that also I will show you। See here, दिस इज़ अ सैम्पल वन। ओके, दिस इज़ द सैम्पल वन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या लिखा है, सीरियल नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ टाइट्रेशन यू आर डूइंग, 1 2 3 4 जितने भी टाइट्रेशन है, सो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 टाइट्रेशन यू हैव टू डू। देन वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट सॉल्यूशन यू आर एडिंग। सो एवरी टाइम आपको क्या करना है, ब्यूरेट सॉल्यूशन से आपको 2 ml उसमें ऐड करना है। तो यू कैन कीप द क्वांटिटी फिक्स, सम टाइम यू कैन ऐड 0.5 ml 0.5 ml, सम टाइम यू कैन ऐड 1 ml 2 ml। तो एवरी टाइम यू हैव टू ऐड सेम क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो वॉल्यूम है सेकंड कॉलम में ये कैसा बढ़ रहा है, 1 2 3 4, मीन्स एवरी टाइम यू आर एडिंग ओनली 1 ml ऑफ ब्यूरेट सॉल्यूशन, एवरी टाइम यू आर एडिंग ओनली 1 ml ऑफ ब्यूरेट सॉल्यूशन। सी हियर, अभी नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ EMF। तो आप जैसे जैसे क्या करते हो, यू आर एडिंग द ब्यूरेट सॉल्यूशन, स्लोली देर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन योर EMF। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर बार EMF बढ़ेगा, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। ओके, सो स्लोली द EMF इज डिक्रीजिंग, सो यू कैन सी अ कॉन्स्टेंट चेंज इन द रीडिंग। ओके, अगर बढ़ रहे तो वो बढ़ते ही जाएंगे, अगर वो कम हो रहे तो वो कम ही होते जाएंगे। ओके, सो दिस वे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ वर्सेस, जो आपका ये जो ग्राफ है वो आपको प्लॉट करना है वॉल्यूम वर्सेस EMF। आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो कैसा प्लॉट करना है, द सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, वॉल्यूम वर्सेस EMF। ओके, ये जो कॉलम है ये वॉल्यूम का कॉलम है। ओके, एंड ये जो थर्ड कॉलम है दैट इज़ अबाउट योर EMF। तो ऐसा अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो देन यू विल गेट द ग्राफ दैट आई हैव शोन यू अर्लियर। देन आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज़। ओके, तो ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे आपको क्या देखना है, देर इज़ डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब ये जो डेल्टाज है इनमें से उसका डिफरेंस निकालना है आपको। ओके, एंड व्हाट इज़ डेल्टा ई, सी हियर, डेल्टा ई में क्या करना है आपको, ये जो EMF है उसमें का डिफरेंस निकालना है। सो सेकंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग आप माइनस करो। ओके, थर्ड रीडिंग में से सेकंड रीडिंग माइनस करो, सो देन यू विल गेट डेल्टा ई एंड देन यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी। 1 2 3 4, ये जो फोर्थ कॉलम है ये फोर्थ कॉलम को आप फिफ्थ कॉलम से डिवाइड करो तो आपको ये सिक्स्थ कॉलम मिलेगा। ओके, सो दिस वे फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। ओके, then you will take the reading of EMFs, then in next column you can find out the difference between these volumes, 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 2, तो सबका रीडिंग आएगा 1। ओके, देन डेल्टा ई कैसे करना है,
आपको EMF सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से फर्स्ट रीडिंग सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से सेकंड रीडिंग सब्ट्रैक्ट करो, देन यू विल गेट दिस डेल्टाज। और आप जब V अपॉन E करोगे देन डेल्टा E अपॉन डेल्टा V, तो आपको ये लास्ट वाला कॉलम मिलेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट सिंपल कैलकुलेशन दैट यू विल एक्चुअली परफॉर्म इन योर laboratories. Okay, so when you do all these calculations then you will get these type of graphs. Okay, तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया हम लोगों ने, एज आई एक्सप्लेन यू हियर, आपको V वर्सेस E, V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड, दैट यू हैव टू प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, देन EMF E जो थर्ड कॉलम में है, दैट यू हैव टू प्लॉट ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो आप यहाँ देखो EMF फर्स्ट ग्राफ देखो आप, EMF आपको प्लॉट करना है ऑन वाई एक्सिस, और ये जो वॉल्यूम्स है 1 2 3 4, ओके, द सेकंड कॉलम, दैट यू हैव टू प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रन। और आप लोग देख सकते हो आइदर इट कैन डिक्रीज और इट कैन इंक्रीज, तो इन दिस केस इट इज़ इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आपका एंड पॉइंट आएगा वैसे वैसे आपका ग्राफ स्लोली क्या होगा, इंक्रीज होगा। And when you get the actual end point you will get a sharp increase, और उसके बाद आपको ग्राफ फिर से स्टेडी मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट द एक्चुअल चेंज इन द potential of the system. So instead of getting any color change here, at this point you get sharp color change, okay, or sharp change in potential, and after the end of your reaction again the graph will remain steady, क्योंकि आपको रीडिंग फिर से स्टेडी मिलेंगे। ओके, ये चेंज क्यों दिख रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग शार्प चेंज। ओके, आई कैन शो यू हियर, सी हियर। ओके, ये जो आपका रीडिंग है इट इज़ 115 ओवर हियर, 115, और उसके बाद रीडिंग कितना है 9, मतलब देर इज सडन डिक्रीज। ओके, 115 से रीडिंग कहाँ जा रहा है, सीधा 9। ओके, हियर दिस वन, so this is the sharp change in potential. Okay, and then फिर से वो नीचे की ओर जा रहा है, -52 -74, मीन्स देर इज शार्प चेंज इन पोटेंशियल इन दिस एरिया। ओके, सो ये जो शार्प चेंज है इसके आप जब रीडिंग प्लॉट करोगे ग्राफ पर, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, एंड हियर यू गेट द शार्प चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर ये जो सीधी लाइन है आपकी उसका आप सेंटर पॉइंट निकालते हो, तो that will touch to the x axis and that will be the volume required for the reaction completion. तो आपको ये जो एरो टच कर रहा है यहाँ पे, ये एरो जहाँ पे टच कर रहा है वो x axis पे क्या है, that is the volume of NaOH. you can say आपने ब्यूरेट में NaOH फिल किया है, तो आपको कितना NaOH लगा टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये जो NaOH जहाँ पे ये एरो टच कर रहा है ऑन द x axis, there you get the volume required for titration of your acid. तो आपने बीकर में जो सॉल्यूशन लिया था ना, एनालाइट सॉल्यूशन, दैट इज़ योर एसिड, और उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं था, राइट। तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस में कितना लगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे तो कोई कलर चेंज नहीं आया था। तो आफ्टर प्लॉटिंग अ ग्राफ व्हाट विल हैपन, ये जो आपका एरो है ये एरो कहाँ पे टच हो रहा है, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ योर NaOH रिक्वायर्ड। ओके, तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट का ग्राफ है वहाँ पे आप देख सकते हो देर इज़ एन एरो, दैट एरो इज़ शोइंग यू द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो आप देख लो, आपको फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। ये एस शेप ग्राफ था, और इस एस शेप ग्राफ में जहाँ पे आपका लाइन और वो एरो एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रन हम लोग NaOH यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH लगा, तो ये जो एरो टच हो रहा है ग्राफ को, दैट विल प्रोवाइड यू द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रन रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस वे you can find out the end point of your reaction. In the second graph you can see that if you take this one, that is ये जो लास्ट कॉलम आप देख रहे हो डेल्टा E अपॉन डेल्टा V, ओके, डेल्टा E अपॉन डेल्टा V वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, अगर आप टाइट्रेट प्लॉट कर रहे हो तो आप ये इस तरह का ग्राफ मिलोगे आपको। हियर ऑल्सो नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट यू विल गेट शार्प rise in your potential and slowly it will decrease.
तो ये जो शार्प राइज है, ये शार्प राइज कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, ओके। एंड देयर अगेन यू हैव टू मीट दैट लाइन टू द x axis, there you get the your end point of the reaction, volume of titrant required. Similar case is in the last one. If you take the square of this one, delta E upon delta V, last वाला, उसके फिर से आप स्क्वायर ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, और भी ज़्यादा शार्प ग्राफ मिलेगा। और ये लाइन जहाँ पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दैट विल बी योर एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, ओके। सो दैट यू कैन सी हियर। Then in these graphs you can see overall endpoints, and then by these graphs you can find out the actual endpoints of your, okay। so आप लोगों को डाउट आएगा कि why there are सेम रीडिंग तो सेम है, तो हम लोग तीन टाइप के ग्राफ क्यों निकल रहे हैं, राइट। सो इट इज़ बिकॉज दैट इन द फर्स्ट ग्राफ इट इज़ एस शेप ग्राफ, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। लेकिन अगर आप सेकंड ग्राफ की बात कर रहे हो तो उसमें आपको एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन पॉइंट ओवर हियर, ओके। ये जो शार्प पॉइंट आपको दिख रहा है, वहाँ से आप सीधा लाइन नीचे ड्रॉ कर सकते हो, ओके। सो दिस लाइन विल गिव यू एक्चुअल आइडिया अबाउट द एंड पॉइंट। और अगर आप थर्ड ग्राफ की बात कर रहे हो तो ये थर्ड ग्राफ में तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट विल बी योर एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। सो इन दिस वे दिस थ्री ग्राफ गिव यू actual or very clear idea about the end point or the volume required for the completion of the reaction. So इसीलिए हम लोग तीन टाइप के ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके। बट द रिजल्ट विल बी सेम इन द फर्स्ट ग्राफ, वेर एवर यू गेट द एंड पॉइंट, दोनों में वही आपको मिलने वाला है, ओके। द वॉल्यूम ऑफ द एंड पॉइंट विल नॉट चेंज, ओके। सो दिस इज द सिंपल टेक्निक विच वी यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. Instead of chemical we use potential as the indicator, okay. So these indicator electrodes are of three type, that also we have discussed, that is hydrogen gas electrode, then glass electrode and queen hydron electrode. Then how they will work, that we will see in the next part. So till that, take care, thank you.